नेक्स्ट हमारा स्टेजेस से शुरू करना है ना। स्टेजेस तो कट हो गया ये, ठीक है बढ़िया। अब यूके है ना, वाई आर वी एक्चुअली स्टडिंग यूके, क्योंकि ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूके से अडॉप्ट की हुई हैं और काफ़ी हद तक यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंडिया का कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिमिलर है। तो द मेन रीज़न टू स्टडी यूके इज़ कि अगर आ भी गया, मतलब इनका आ भी सकता है, और अगर आ गया तो आपको सिर्फ इतना ही मार्क करना है, मोस्ट वैसे पढ़ लेंगे जो इंडिया से मैच होता होगा, राइट। तो पहला 1992 में कैडबरी कमेटी, कैडबरी बंदा था और सच में कैडबरी वाला ही बंदा, ठीक है। अभी कैडबरी कमेटी ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर द chairmanship of Sir Adrian Cadbury was set up in May 1991 by the Financial Reporting Council, the Stock Exchange, and the accountancy profession in response to continuing concerns about the standards of financial reporting and accountability practically in the light of EA. The committee submitted its report in 1992 and developed a set of principles of good corporate governance, which were incorporated into the London Stock Exchange listing rules. It also introduced the principles of comply or explain. It made the following 3 basic recommendations, right? तो ऊपर के तो 3 लाइन को काम के नहीं लग रहे है ना, नीचे वो 4th लाइन से द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन दिस। और मेन जो 3 बेसिक रिकमेंडेशन है वो क्या है? CEO and chairman of the company should be separate, शाबाश। Board should have at least 3 non-executive directors, 2 of whom should have no financial or personal titles to executives. Personal ties to the executives, and each board should have an adult committee composed of non-executive, audit committee composed of non-executive directors। बढ़िया, तो इजी, ये सिमिलर है हमारे जैसा। उसके बाद ग्रीनबरी कमेटी, द कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री कंस्टिट्यूटेड अ ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर ए रिचर्ड ग्रीनबरी टू मेक द रिकमेंडेशंस ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। The group submitted its report in 1995. Major findings were as under: constitution of remuneration committee comprising of non-executive directors, so NRC committee हम बोलते हैं। Responsibility of this committee in determining the remuneration of CEO and other executive directors. Responsibility of the committee in determining the remuneration policy. Level of disclosure to shareholders regarding remuneration of directors, and remuneration should be linked more expressly to the performance. See, so ये भी almost similar to ours, राइट। इसीलिए ही यूके का आसान है थोड़ा पढ़ना, क्योंकि अलग कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो ये डन हैम्पटन हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ हिग्स वाला रिपोर्ट पढ़ेंगे। सर डेरिक हिग्स वाज कमीशन्ड बाय द यूके गवर्नमेंट टू रिव्यू द रोल्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ऑफ ऑडिट कमिटीज। रिजल्टिंग रिपोर्ट ने क्या बोला? एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड बी कंप्राइज्ड ऑफ नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। Non-executive should meet at least once a year in isolation to discuss company performance. Senior independent director to be nominated and made available for shareholders to express any concerns. This whole lead independent director का concept. The potential non-executive director should satisfy themselves that they possess the knowledge experience. शाबाश, done. अगला UK stewardship code, right? तो यहाँ पर स्टीवर्डशिप ये पढ़ा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल एलोकेशन, मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ कैपिटल टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज। स्टीवर्डशिप क्या था? पीपल मैनेज फॉर, जो पीपल मैनेज करते हैं फॉर अदर्स, राइट। हाँ, तो लीडिंग टू सस्टेनेबल बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। स्टीवर्डशिप कोड इज अ सब्सटैंशियल एंड एम्बिशियस रिवीजन टू द 1210 कोड, ठीक है। इसमें द कोड डज नॉट, 3rd लास्ट लाइन है, the code does not prescribe a single approach to effective stewardship. Instead, it allows organization to meet the expectations in a manner that is aligned with its own business model strategy. अपना कुछ बता रहे हैं, आप अपनी बिजनेस रोल स्ट्रैटेजी सब कुछ बनाओ और अपने हिसाब से काम करो। फिर तेरे यहाँ पे दूसरे बंदे आए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड नहीं है 2025। क्या बोल रहे हैं? The FRC published its new 2024 UK Corporate Governance Code. The code is applicable to all the companies listed in the commercial companies category or closed-ended investment fund category, whether incorporated in UK or elsewhere. The 2024 code applies to accounting period beginning on or after 1st January 2025, with the exception of the provision 29. This provision is applicable for accounting period beginning on or after 1st January 2026. The code will provide a strong basis for the companies to evidence the effectiveness of their internal controls, thereby enhancing transparency and investor confidence. सिर्फ internal controls को strong करना। ठीक, ये हो गया। ये अगला
यूएसए वाला, यूएसए में वेट मार्क किया था ना। ये ना यहाँ से देख लेते हैं, इसमें यूएसए वाले में ये जो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी है ना, अगले पेज पे चलो इतना ये वाला पढ़ लेते हैं। द यूएस ये सिक्योरिटीज कमीशन, द एम ऑफ यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, मेंटेन फेयरली ऑर्डर एफिशिएंट मार्केट, वही सेम जो हमारा सेबी करता है। द एसईसी ओवरसीज की पार्टिसिपेट्स इन सिक्योरिटीज वर्ल्ड इज कंसर्न्ड विद प्राइमरी प्रमोटिंग एंड डिस्क्लोजर्स, राइट। अब अपना सार्बन-ऑक्सले एक्ट जो है ना, ये अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का ही था, वहीं से ही आया और हमने अडैप्ट किया। हम इसे पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोविजंस ऑफ सार्बन-ऑक्सले एक्ट अडैप्ट किए। वो पीछे कौन सी कमेटी थी? नरेश चंद्र ने की थी, है ना। नरेश चंद्र ने पढ़ी थी कि भाई अपना पंगा है, वो एनरॉन स्कैम आया, एनरॉन कमेटी बना दी। हाँ, राइट। सो दैट इज व्हाई व्हिच लेड टू दिस, करेक्ट। तो इसीलिए ही हम सार्बन-ऑक्सले पढ़ रहे हैं। अब वो एनरॉन स्कैम का हल्का फुल्का याद है ना कि क्या हुआ था वहाँ पे, इन्फ्लेटेड ये एसेट्स में रिजर्व रख दिए, रिजर्व्स को इन्वेस्ट करवा दिए। तो in 2002 the United States Congress passed the Sarbanes-Oxley Act to protect shareholders and the general public from accounting errors and fraudulent practices in the enterprise। देख सारा का सारा एनरॉन स्कैम वाले ही धक्के खाए हुए जवाब दे रहे हैं। और ऑडिटर एंड कॉर्पोरेट रिलेशनशिप था और एक कमेटी। हाँ, तो वही अकाउंटिंग एरर्स हो गया, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो गया, एंड टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स। सो अब ये ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लास्ट लाइन, द एक्ट बिकेम इफेक्टिव सिंस 2006, मिल गया ना। फॉर ऑल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एंड रिपोर्ट टू द एसईसी फॉर कंप्लायंस। In addition, certain provisions of Sarbanes-Oxley also apply to privately held companies। ठीक है, तो उनको तो अप्लाई करता है, कुछ प्राइवेट को भी अप्लाई करता है, फाइन। अब पहला SOX सेक्शन 302। अब सार्बन-ऑक्सले एक्ट जो है ना, ये अलग अलग सेक्शन ऑफ कोर्स सारे तो याद नहीं होंगे, पर हमें ना सिर्फ मेन जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे सिर्फ उतने देखने हैं। अब इसमें भी सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 विल बी दिस वन ओनली, 302, जहाँ पर बोलता है कि प्रॉपर अकाउंटिंग करो, राइट। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट इज नथिंग बट अकाउंटिंग इन अ वे। सो ये CEO and CFO must review all financial report does not contain any misrepresentation, fairly presented। CEO CFO are responsible for internal accounting control, must report any deficiency or any fraud involving audit, or must indicate any material changes। बढ़िया, ये डन है। सेकेंड तुम्हारा दूसरा पॉइंट बोला डिस्क्लोजर्स के बारे में। ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स टू बी एक्यूरेट एंड presented in a manner that does not contain incorrect statements or admit to state material information। जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपने बता दी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका डिक्लेरेशन दे दिया। एंड सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड आल्सो इंक्लूड ऑल द मटेरियल ऑफ बैलेंस लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस एंड ट्रांजैक्शंस की कुछ ऑफ बैलेंसेस जा रहे हैं कुछ भी, तो वो मटेरियल जो भी है वो सब बता दो। यहाँ तक डन। तो ये पॉइंट नंबर 1 2। उसके बाद तुम्हारा थर्ड वाला 409 वाला पढ़ो। Companies are required to disclose on an almost real-time basis information concerning material changes। पहला बोला अकाउंटिंग ठीक करो, दूसरा बोला डिस्क्लोजर करो, तीसरा बोला रियल टाइम डिस्क्लोजर कर दो, ठीक है। और लास्टली फोर्थ होता है पेनल्टी। अगर ऐसा हुआ, ऑल्टरिंग डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑनगोइंग लीगल इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग, तो तुम्हारा एक सेकेंड, ये 802 और 906 इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। 906 बोलता है कि अगर क्रिमिनल पेनल्टीज हैं तो कितनी लगेंगी, कैन बी अपवर्ड ऑफ 5 million इन फाइन्स एंड 20 years इन प्रिजन। उसके बाद तुम्हारा सेक्शन 303A कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, राइट। इसको मार्क करवाना है मुझे क्योंकि ये थोड़ा सा ना कम ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब ये 303A कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है ना, ये न्यूयॉर्क ही है ना, आई थिंक। इन्होंने क्या बोला, कंपनीज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज मस्ट कंप्लाई विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज कोडिफाइड इन द सेक्शन 303A, फुल स्टॉप, बस इतना ब्रैकेट मार्क करो। उसमें हमने पहला बोला इक्विटी लिस्टिंग्स, राइट।
तो 303 applies in full to all companies listing common equity securities with the following exceptions, right? Following exception क्या? अब इसमें ये अगला controlled companies, listed company of which more than 50% of the voting power is held by an individual, a group of another company need not comply with the requirement of section 303A. कि अगर मतलब कंट्रोल्ड कंपनी है तो 303A को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राइट? 303A है क्या, वो ढंग से उन्होंने बताया नहीं। 303A इसका ही पार्ट है? किसका? इसका ऑक्सली का ही पार्ट है? नहीं नहीं, ये तो नहीं, वो दूसरे पे पहुंच गया। अच्छा, बस ये खत्म हो गया। हाँ, सार्वजनिक ऑक्सली खत्म हो गया इतना ही था, ठीक है, राइट? ये डन। उसके बाद इसी में ही कंट्रोल्ड कंपनी वाला जो है ना पॉइंट, उसमें है सेकंड लाइन में, कंट्रोल्ड कंपनी दैट चूजेस टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी और ऑल द एग्जेम्पशंस मस्ट डिस्क्लोज दैट चॉइस दैट इट इज अ कंट्रोल्ड कंपनी, राइट? उसके बाद लिमिटेड पार्टनरशिप्स एंड कंपनीज इन बैंक्रप्सी ड्यू टू द यूनिक एट्रीब्यूट्स, लिमिटेड पार्टनरशिप्स एंड कंपनीज इन बैंक्रप्सी बिल्डिंग नीड नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 303A। फिर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड फंड्स, बस हेडिंग मार्क कर ले। उसके बाद अदर एंटिटीज कट हो जाएगा। फॉरेन प्राइवेट इशूअर्स, listed entities that are foreign private issuers are permitted to follow home country practices in lieu of the 303A, ठीक है? और preferred and debt listing इनको भी नहीं करना फॉलो, बढ़िया। तो 303A है क्या, वो भगवान जाने, या तो ये लोग। उसके बाद तुम्हारा यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड तो सारा ही चेंज हो गया है ना, हाँ जी। तो इसको तो फिर स्किप कर देते हैं, क्या बोलते हैं ना, सेंट्रल प्रिंसिपल। हाँ, सेंट्रल प्रिंसिपल्स किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, राइट? तो अब ये ऑस्ट्रेलिया के जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स है ये भी अगेन सेम है, पर अभी बोल कर रहे हैं दे ले सॉलिड फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट। सेंट्रल प्रिंसिपल्स फॉर व्हाट, एक सेकंड रुक, इसको ना ऐसे पढ़ ले, जो तेरा ऊपर ऑस्ट्रेलिया वाला पैराग्राफ है ना, उसमें थर्ड पैराग्राफ है दीज प्रिंसिपल्स वाला, राइट? उसकी थर्ड लाइन लास्ट में लिखा है, द प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस आर नॉट मैंडेटरी, डू नॉट सीक टू प्रिस्क्राइब द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस दैट अ लिस्टेड एंटिटी मस्ट अडॉप्ट, ठीक है? तो बस बता रहा है कि कुछ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं जो मैंडेटरी नहीं है। पहला, लेस सॉलिड फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट, कि भाई फॉर क्लियर डेलिनेट करो, रूल्स है वो कर दो, स्ट्रक्चर द गो टू बी इफेक्टिव एंड वैल्यू, स्किल्स आनी चाहिए, उनको आना चाहिए काम, करेक्ट? तो पहला तेरा पॉइंट स्ट्रक्चर वाला हो गया, दूसरा पॉइंट तेरा स्किल्स वाला हो गया, थर्ड पॉइंट तेरा एथिकल रिस्पॉन्सिबल हो गए वो लोग, राइट? इंटेग्रिटी ऑफ द कॉर्पोरेट रिपोर्ट सही, डिस्क्लोजर सही होने चाहिए, मेक टाइमली बैलेंस डिस्क्लोजर, वो रियल टाइम बेसिस पे जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था। रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स, है ना? राइट ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स मतलब भाई अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दो उनको, टाइमली सब कुछ, recognize and manage the risk and remunerate fairly and responsibly, बढ़िया। अब ये जो हमने यहाँ पढ़े हैं ये सिमिलरली यहाँ पर भी हैं, अगले पे भी, इसलिए हमने ये वाले पढ़ लिए कि भाई अगर कोई भी आ गया तो आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स रह जाएंगे कि आपको क्या करना है। तो ये तेरे ऑस्ट्रेलिया के हो गए, सिंगापुर के भी पहले 6 मार्क कर ले। कंपनी इज हेडेड बाय द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी, हमेशा में वो स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरह से आ गया। दूसरा, कंपनी हैज एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी, जो स्किल और ये सब वाला था पीछे, इफेक्टिव एंड ऐड वैल्यू जो था ना, तो बस इस तो उस तरीके से डाइवर्सिटी है, बैकग्राउंड इन द कंपोजिशन इज टू एनेबल इट टू मेक डिसीजंस एक्सेट्रा। फिर क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज है, प्रोग्रेस रिन्यूअल वाला है अगला पॉइंट, फॉर्मल एंड ट्रांसफर प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग कि नया बंदा कौन आएगा, formal assessment of its effectiveness as a whole, and board has a formal and transparent procedure for developing policies, right? तो बस ये 6 points are more than enough. Then you can come to director independence and director nomination process, right? ये भी exactly वो इन्होंने ना बस ये किया भाई, याद है हमने ना पीछे एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने वो मलेशिया वाला देखा था शायद, कैसे वो गोले गोले बने मतलब बहुत सारे, फिर वो 9 साल के बाद दोबारा अपॉइंट होता है, 2 टायर वाला हमने पढ़ा था, 2 टीयर के सिर्फ मलेशिया ही था ना शायद, पढ़ा कौन से चैप्टर में था, थर्ड में था ना शायद, थर्ड में होगा, क्योंकि एक्चुअली सच में जो लास्ट वाला पढ़ा मतलब पढ़ा है, हाँ जी थर्ड पढ़ी था ना मलेशिया का, वो तो हम लोग कह रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाँ ये देखिए मलेशियन वाला, मलेशिया
मलेशिया वाले में था ना, और उसने बोला था कि 2 डेज में वोटिंग होगी और उसके बाद अगर वोट हो गया तो वो दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। बस ये वही है, बस यहाँ पर मलेशिया नहीं है लेकिन सिंगापुर। ठीक है, तो ये फ्रॉम दिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल हैव अ tenure limit of 9 years, where an independent director has served 9 consecutive years of service. Continuation on the board as an independent director will be subject to 2-tier voting. 2-tier में था ना, या तो सारे, एक तो पहले सारे shareholders, फिर सारे public। हाँ, तो भाई all shareholders excluding the director, CEO and their associates। तो उन्होंने promoters को एक तरीकों को निकाल दिया। From January 1, board must be majority of independent, where the board chair is not independent। ये याद कर, हम अपने जैसा ही है, board chair अगर independent नहीं है, and the code establishes that regardless of the board chair, non-executive directors will need to be comprised of the majority of the board। ये उनके जैसा ही था। अगर बोर्ड चेयर इंडिपेंडेंट है तो नहीं, सॉरी, बोर्ड चेयर इंडिपेंडेंट नहीं है तो मेजॉरिटी, और अगर बोर्ड चेयर इंडिपेंडेंट है तो फिर नॉन एग्जीक्यूटिव आनी चाहिए कम से कम, राइट। उसके अलावा सब्सटैंशियल शेयर होल्डर विल बी 5%। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट तेरा रेम्यूनरेशन सब तक किया। किंग वाले में, किंग्स में, हाँ, अब किंग के प्रिंसिपल भी सिमिलर है। देख, गवर्निंग बॉडी जो हुआ ना, यहाँ पर गवर्निंग बॉडी मतलब बोर्ड, ठीक है, जो अपनी कंपनी का बोर्ड होता है उनके लिए स्पेसिफिकली बोला गया कि इट शुड बी लीड एथिकली एंड इफेक्टिवली। थर्ड पॉइंट, गवर्निंग बॉडी शुड इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज and is seen to be responsible corporate citizen. Fifth point, governing body should ensure that reports issued by the organization enable stakeholders to make informed assessments, proper disclosures हो जाएंगे। Seventh, governing body should comprise the appropriate balance of knowledge skills skill आ गया। Ninth, should ensure that evaluation of its own performance members proper। 13th बोलता है ये वॉलंटरी वाले कोड्स हैं। द गवर्निंग बॉडी शुड गवर्न कंप्लायंसेस विद एप्लीकेबल लॉज एंड अडॉप्ट सच नॉन बाइंडिंग रूल्स। कि नॉन बाइंडिंग रूल्स को भी अडॉप्ट करो और एथिकली काम करो एक्सेट्रा। शुड इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन रेम्यूनरेट्स फेयरली, रिस्पॉन्सिबली एंड ट्रांसपेरेंटली एज टू प्रमोट द अचीवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉजिटिव आउटकम। हाँ ठीक है, रेम्यूनरेशन भी वो अननेसेसरी वाली नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक आपका कंपनी के वैल्यू क्रिएशन में ध्यान होना चाहिए, राइट। अगला, in the execution of its governance role and responsibilities, the governing body should adopt a stakeholder inclusive approach and that balances the needs, interests and expectations of all material stakeholders. Done यहाँ तक? अब OECD principles of corporate governance। पहला, good corporate governance is not an end in itself, it is a means to create the market confidence, integrity in terms with equity, capital, very good, शाबाश, सब कुछ अच्छा होएगा, ऐसा सब बोला। अपडेट इसी पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन है, we updated G20 principles of corporate governance, therefore provide a very timely and tangible contribution to the G20 priority। प्रिंसिपल्स ही करते हैं तो काम कर लग भी नहीं रहा ना, डेट से आगे सारी। The principles provide guidance through recommendation and annotation of 6 chapters। इन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया OECD प्रिंसिपल्स को, और हर उस चैप्टर में हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए, ठीक है। पहला चैप्टर उसने बोला ensure the basis for an effective corporate governance framework। अब ये जो है ना, इसने क्या बोला, इंश्योर द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, यानी कि आप चाहते हो कि आपकी कंपनीज जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करें, तो इसके लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, और आप मतलब कंट्री एज अ होल। अच्छा, उन्होंने बोला कंट्री को बोला कि देखो कंट्री, अगर तुम चाहते हो कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करें तो तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तुम्हें भी देखना पड़ेगा कि ऐसा एनवायरमेंट हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो की जा सके। तो ये कंट्री के लिए बना दिया रूल पहला। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मार्केट इंटेग्रिटी एंड इंसेंटिव। तुम बोल रहे हो मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करूँ, गवर्नेंस ऐसा बनाओ जो फॉलो करने लायक हो, ठीक है। पहला, इट क्रिएट्स मार्केट पार्टिसिपेशन, ऐसा प्रॉपर बनाओ ना। फिर दूसरा, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स दैट अफेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस शुड बी कंसिस्टेंट विद द रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंट एंड एनफोर्सेबल, राइट। क्योंकि मैं गवर्नेंस प्रैक्टिसेस तो मैं नहीं बना रही हूँ ना, मैं तो फॉलो कर रही हूँ, तो फिर इसलिए इसको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो याद
याद रहेगा, ठीक है। थर्ड, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट अथॉरिटीज शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड, कि हमें पता लगे कि हमें कहाँ कौन सी रिपोर्टिंग करनी है, राइट। स्टॉक मार्केट रेगुलेशन शुड सपोर्ट इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Supervisory, regulatory and enforcement authorities should have authority, integrity and resources to fulfill the duties, and cross-border cooperation should be enhanced. बढ़िया. Then you have the rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions. अब इसमें हर पॉइंट में कुछ कुछ और पॉइंट सब पॉइंट्स डाल दिए. तो पहला इसने बोला बेसिक शेयरहोल्डर राइट शुड इंक्लूड द राइट टू, इजी है, ओनरशिप हो, उनके पास इंफॉर्मेशन हो, ट्रांसफर कर पाए शेयर्स, पार्टिसिपेट कर पाए मीटिंग में, वोट कर पाए, प्रॉफिट्स में शेयर हो उनका, वही सरप्लस वाले भी हो गए. बी में सफिशिएंटली इन्फॉर्म्ड हो, वही लिखा हुआ है अमेंडमेंट्स के बारे में, चेंजेस के बारे में, सब कुछ सही. सी पॉइंट वोटिंग के बारे में बता रहा है कि उनको प्रॉपर टाइमली नोटिस दिया जाए. जो सी का फर्स्ट पॉइंट है, फर्निश सफिशिएंट टाइमली इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द डेट, लोकेशन ऑफ द वोटिंग, प्रोसीजर्स, जनरल मीटिंग्स, अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू द बोर्ड, राइट. और फोर्थ होता है इफेक्टिव शेयरहोल्डर पार्टिसिपेशन इन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन such as the nomination election of the board meeting should be facilitated, ठीक है. Fifth, shareholders should be able to vote in person or in absentia and equal vote proxy, ठीक है. और impediments to cross border voting should be eliminated, ठीक है. हाँ, D वाला भी वैसा ही है, shareholder include institutional shareholders. E point, all shareholders of the same series of class should be treated equally. 1, 2 कट कर दे E के. F point में related party transaction should be approved, conducted in a manner that ensures proper management of conflict of interest. हाँ fine. G point मार्क कर ले minority shareholders का protection, और H point कट कर दे. सही. F के भी 1, 2 कट करने हैं. हाँ ठीक है. E का भी सिर्फ मेन लेना, ठीक है. ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर हुआ. थर्ड चैप्टर बोला institutional investors, stock market and other intermediaries. The corporate governance framework should provide sound incentive throughout the investment chain and provide for stock market to function in a way that contributes to good corporate governance. Very good. तो stock market वही securities exchange market के लिए बोला. Institutional investors acting in fiduciary capacity should disclose their corporate governance. देख यहाँ पर ना एक स्पेसिफिक बात क्या बोली हुई है पता है कि ना हर कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ प्रमोटर्स होते हैं, कुछ बेसिक रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे जैसे, और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं. तो ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर बोला कि यार you are the actual people who are driving the मतलब ऐसा the security market to whichever direction, right. तो आप कुछ डिस्क्लोजर्स करो, ठीक है. उनसे हमने कुछ डिस्क्लोजर्स मांगे कि तुम अगर किसी कंपनी में कुछ वोटिंग कर रहे हो तो फिर फेवर में कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेजर स्टेक होल्डर शेयर होल्डिंग है ना. तो तुम्हारी वोटिंग के बारे में बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने किसी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए तो क्यों किए हैं ऐसा. वी वांट अ क्लैरिटी ओवर डिसीजन मेकिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है. तो institutional investors should acting in the fiduciary capacity should disclose their corporate governance and voting policies with respect to the investments, including the procedure that they have in place for deciding on the use of the voting rights. But yeah, फिर vote should be cast by custodians or nominees in line with the directions of the. हाँ वो तो पता ही है. उसके अलावा material conflicts है. हाँ fiduciary वाला हो गया ना. प्रॉक्सी एडवाइजर एजेंसीज एंड अदर. वो भी प्रॉक्सी एडवाइजर एक तरीके का इंटरमीडियरी हुआ, पर है ना यहाँ पर प्रॉक्सी एडवाइजर नया है. प्रॉक्सी एडवाइजर वो बंदा होता है जो आपको बताता है कि कहाँ वोट करना चाहिए. ये उस तरीके का बंदा है, ठीक है. तो देना पॉइंट्स पता है कौन सा मार्क कर, ए वाला पॉइंट मार्क कर ले, सी मार्क कर ले, डी मार्क कर ले और ई मार्क कर ले. बस ये पॉइंट्स बहुत है ना. फिर इंटरनल ट्रेडिंग है. और अच्छा एफ तो कट कर दिया, नहीं पढ़ने की जरूरत है. जी कर सकते हैं, इजी सा है. फेयर एंड एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी टू मींस प्रमोट. हाँ ठीक है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है ना हमारा, ये यू कैन कट इट आउट. वैसे मतलब यहाँ पर बोले देखो रीड मार्क करना तो कर सकते हैं. ये ना क्यों है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही है जो हमने पढ़ रखा है. तो देख एक जो बेसिक फ्रैंक चीज है वो कि वो सारे प्रिंसिपल्स इकट्ठे तो पूछ नहीं सकते. पूछेंगे तो अलग अलग ही पूछेंगे. तो उसमें भी प्रिंसिपल ये फर्स्ट सेकंड का फिर भी सेकंड का एक्चुअली पूछने का चांस है, फर्स्ट वाले चैप्टर का पूछने का चांस नहीं है. थर्ड वाला भी हमने जस्ट इन केस कर लिया. और रोल ऑफ स्टेक होल्डर तो ऐसे ही है फालतू का. डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी भी वेरी इजी.
फाइनेंशियल ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मेजर शेयर ओनरशिप हो गया, तो ये सब का डिस्क्लोजर्स है, रेम्यूनरेशन का डिस्क्लोजर्स है, बोर्ड मेंबर्स के इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन के प्रोसेस का डिस्क्लोजर है, रियल मनी ट्रांजैक्शंस, फोरसीएबल रिस्क फैक्टर्स का डिस्क्लोजर, इश्यूज रिगार्डिंग एम्प्लॉइज, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स. सो इजी है. इजी. नेक्स्ट पे आ जाओ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोर्ड पे. तो रिस्पांसिबिलिटी ये भी सेम ही है. गुड फेथ है वो. ये हाँ सेम है, बट ये भी नॉट टू लर्न मार्क कर लेना, इसको भी नॉट रीड खाली. ठीक है, तो तेरा फोर्थ और सिक्स्थ लर्न करना मत, बिल्कुल नहीं. ये तो सेम है जो हमने पीछे भी एक जगह पे बोर्ड का पढ़ा था. कंपोनेंट्स वाले में भी जो पढ़ा चैप्टर है 6 या 3 या कहीं पर हमने कंपोनेंट्स में जो पढ़ा है सेम ही है. इंटीग्रिटी प्रॉपर ये वो. ठीक है, सही. फिर फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है ना, is on increasing the ये तो वैसे नॉट इम्पोर्टेंट है. अगर चाहते हो तो मैं इसकी वो लिखा देती हूँ. शॉर्ट नोट लिखा देना. शॉर्ट नोट लिखवा देना. 2025 है क्योंकि ये. अरे यार फिर ये अमेंडेड है. 2025 2020 है. नहीं, ये 2025 है. और इसके आगे जैसे जेंडर बैलेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डाइवर्सिटी, इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रिपरेशन एंड प्रपोजल, ये वो. आयरिश भी नहीं है ना आपके पास? नहीं, ये एक टाइम के लिए छोड़ सकते हैं. ये भी नहीं है आपके पास? मेरे पास इसके बाद सीधा जापान है. हम एक बार जापान से कर लेते हैं. आगे ये कर लेते जापान. इटालियन वाला तो कट कर देना. हम जापान है. Japan's stewardship code principles and responsible institutional investor. ठीक है, in this code stewardship responsibilities refer to the responsibilities of institutional investors to enhance the medium to a long-term investment return for their clients and beneficiaries, including ultimate beneficiaries. The same shall apply thereafter by improving and fostering the investee company's corporate value and sustainable growth through constructive engagement और purposeful dialogue. बहुत घुमा के इसमें लिख दिया, पर मेन अगेन यहाँ पर भी ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर बात हो रही है सबसे पहली बार. तो इन्होंने क्या बोला कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला गया टू एनहांस द मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न फॉर द क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज. कि उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने को बेटर करना है, राइट. तो देखिए, तो इंक्लूडिंग अल्टीमेट बेनिफिशियरीज द सेम शैल अप्लाई. ठीक है, इंक्लूडिंग द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज मतलब वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होंगे, करेक्ट. उनको तो बोला बाय इम्प्रूविंग एंड फॉस्टरिंग द इन्वेस्टी कंपनीज, इन्वेस्टी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, उनकी कॉर्पोरेट वैल्यू एंड सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट और पर्पसफुल डायलॉग. तो क्योंकि आप इतने बड़े इन्वेस्टर हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस करो. आप लॉन्ग टर्म वैल्यू पे कैसे फोकस कर सकते हो? क्योंकि आप ही तो जो मेजॉरिटी पैसा देते हो. तो आप ऐसे डिसीजन मेकिंग को एनफोर्स करवाओ कि कंपनी बेटर डिसीजंस ले, ताकि इन्वेस्टी कंपनी जो भी है ना वो बेटर कंप्लायंट, बेटर सब कुछ हो. आप ये कैसे कर सकते हो? बाय हैविंग अ डायलॉग विद देम. ठीक है. अगला, द कोड डिफाइंस principles considered to be helpful for institutional investors who behave as responsible institutional investors in fulfilling their stewardship responsibilities with due regard to their clients. हाँ ठीक है. एक्टिव ऐसा फील सा नहीं आ रहा यार इसमें. हाँ मैंने तो सोचा इसमें गूगल में से देख लेंगे, मेन पॉइंट जो हुए 3-4 वो लिख लेंगे बस. डच है आपके पास? सीधा फोरम्स आ गया. ऐसा तो हो सकता है हमारा पर वो रह जाएगा ना मेन वाला लिट टेस्ट वाले. चलो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में सिर्फ फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स काम के. OECD वाले रिलीज फर्स्ट स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 1999, रिवाइज्ड में 2004.
Principles were developed and endorsed by the ministers of OECD member countries in order to help the OECD and non-OECD government in their efforts to create legal and regulatory framework for corporate governance. वैसे corporate governance implement करने के लिए forums. हाँ, implement करने के लिए, encourage करने के लिए, aware करने के लिए. ठीक है. Right? बाकी सब छोड़ दे. फिर कुछ भी नहीं है, सब नीचे आ जा. NFCGB कट किया हमने. फिर IOD UK मार्क करना है ना. The IOD is a non-party political business organization established in United Kingdom. The IOD seeks to provide an environment conducive to business success. ठीक है. अब ना इनका ना मेन तरीका पता है इनका क्या था सोचने का कि देख इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर का इंस्टीट्यूट ही बना दिया कि तुम आओ यहाँ पर पढ़ो और डायरेक्टर बन के निकलो. ऐसा जैसे हम बेसिकली लोगों को एक चीज़ पढ़ाते हैं ना, इन्होंने बोला कि डायरेक्टर कैसे अच्छा बनना है वो पढ़ा रहे हैं लोग. तो उन्होंने इंस्टीट्यूट बना दिया जहाँ पर आके डायरेक्टर की पढ़ने की स्टडीज होगी. मजे. तो द ऑब्जेक्ट ऑफ IOD आर टू प्रमोट फॉर द पब्लिक बेनिफिट हाई लेवल ऑफ स्किल, नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, ये सब कुछ. उनको सर खतरनाक पढ़ाई करा है कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा. To promote the study, research, development of the law, practice of corporate governance, publish, disseminate or otherwise make available the useful results of such study or research. बढ़िया चीज़ है यार, ये होनी चाहिए. ऐसे एकदम से फालतू बंदा नहीं बैठेगा फिर इस पोजीशन पे. ऐसे ही लगा दो एक क्रैश कोर्स ही सही, डिप्लोमा ही सही, 2 साल का. किसी को पता नहीं है किसी किसका मेन क्या होगा, वही तो पहले करवाना है, ये काम करना है, ये वो. बढ़िया डिप्लोमा ही हो जाए, अच्छी चीज़ है. अगर यूके चलते हैं कराते हैं. To represent the interest of members and of the business community to government and in all public forum होगा, and to encourage and foster a climate favorable to entrepreneurial activities. ठीक है. फोरा वैसे होता है वो, बाकी उसका मतलब फोरम होता है. ठीक है. बढ़िया. And to advance the interest of members of the institute and to provide facilities and benefit for them. ठीक है. बाकी डे टू डे कट कर दे. पता नहीं कौन है डायरेक्टर जनरल है, जबरदस्ती. कॉमनवेल्थ कट किया. इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क. द इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. गारंटी है ना, एक ही है ना, लिमिटेड नहीं, डबल ही है. गारंटी वो था ना लिमिटेड बाय गारंटी. तो गारंटी में एक ही ये आता है कि 2 ही आते हैं? 2 शायद. तो गारंटर गारंटी वाला गारंटी नहीं. नहीं ये होता है ना कंपनी लिमिटेड बाय कैपिटल बाय, वो एक चार्ट सा बड़ा. वो तो याद है. हाँ मुझे स्पेलिंग नहीं याद है. मुझे डबल ही लग रहा है. एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अंडर द लॉज ऑफ इंग्लैंड. इससे कुछ छोटा नहीं है मैम. क्या इसमें पढ़ने ही 2 लाइन है, छोटा हो गया. ठीक. The ICGN's mission is to promote effective standards of corporate governance and investors stewardship to advance efficient market and sustainable economic worldwide. Full stop. बाकी का कट कर देंगे. ठीक है. अच्छा इसमें ना एक चीज़ और काम की आएगी जो है 4 प्राइमरी पर्पस. ये काम करना. ठीक है. 4 प्राइमरी पर्पसेस क्या हैं आपके इसके ICGN के जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए उसके प्रिंसिपल पर्पस है इन्वेस्टर लेड मार्केट होनी चाहिए फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एग्जामिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, डेवलप एंड एनकरेज एडहेरेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. घुमा फिरा के एक ही पॉइंट है सब जगह पे. अलग अलग कैसे याद होगा ये नहीं पता. मेरे को लगा 5-6 पॉइंट बना लेते हैं, वही लिखाएंगे सब जगह. वही करते हैं, दिमाग लगाते हैं इसको. उसके बाद तुम्हारा ना ECG है. इसमें ना एक चीज़ और थी. हाँ जो वो पॉइंट्स के बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद एक मेंबरशिप ऑफ ICGN इज ओपन टू दोज हु आर कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. और सेकंड लास्ट लाइन है, पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ. द इंस्टीट्यूट ऑफ CS of India is a member of ICGN and also the country correspondent from India. European Corporate Governance Institute. इसको रीडिंग ऑफ कर ले यार. ऐसे ये वही है ना, इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है. Best practices on corporate governance. सिखा रहे हैं. Corporate governance lies in the heart and capital. इसलिए मैं नहीं पढ़ रही. Conference about the leader, हाँ. the Asian Corporate Governance Association.
हाँ ये पढ़ लेते हैं। द अलग कुछ भी है इसमें भी नहीं, बस हम चूज कर रहे हैं क्या पढ़े क्या ना। द एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस is an independent non-profit membership organization dedicated to working with investors, companies and regulators in the implementation of active corporate governance practices throughout Asia. ACGA was founded in this, ठीक है। ACGA स्कोप क्या है? रिसर्च है, एडवोकेसी, एजुकेशन, रिसर्च, ट्रैकिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेवलपमेंट अक्रॉस 12 मार्केट्स, हर जगह पर ट्रैक करके क्या बेटर नया आया है। एडवोकेसी, engaging in a constructive dialogue with financial regulators, stock exchange। जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं उनको बोलेंगे कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही चीज़ है, हम मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ से आप बात करो कि फॉलो करो। एजुकेशन अवेयरनेस हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव प्लान, डन। CSIA कट किया, IIRC इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड, ये आया था पीछे वर्ड है ना, लिखा था तुम जब। तो IIRC इज अ पावरफुल international cross section of leaders from the corporate, investment, accounting, security, regulatory, academic and standard setting sectors as well as civil society। अभी याद तो रहने वाला है नहीं, पर एक पावरफुल इंटरनेशनल क्रॉस सेक्शन है जहाँ पर लीडर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस एरियाज इकट्ठे होते हैं एंड मेक एन अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या करना है। IIRC was established in recognition of the need to move towards international integrated reporting framework that is fit for purpose for the 21st century। मिशन क्या था इसका? IIRC's mission is to establish integrated reporting and thinking with the mainstream business practice as the norm in the public and private sectors। इसमें देखो integrated reporting का मतलब ये था ना कि आप हाँ don't just गुड पार्टी मत देखो। जैसे मान लिया मैंने बोला कि यार ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 है, फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया ऐसे एकदम 90 कुछ 30,000 का, नेट प्रॉफिट मेरा 10 रहेगा, तो मैं खाली ग्रॉस प्रॉफिट बताई जा रही हूँ। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करो एंटायर थिंग का। सो भाई तो IIRC's विजन इज टू, नीचे वाली लाइन पे आ जाओ, इसको ऐसे ना मार्क कर देख। IIRC का विजन है इज, और सीधी नेक्स्ट पॉइंट में जो है ना सीधा लास्ट वर्ड लिखा है टू अचीव रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मिला? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग नहीं सीधी नेक्स्ट ही लाइन है। ठीक है, विजन है ये कि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें अचीव करना है। क्या रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अचीव करना है? जो कम्युनिकेट करे द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, बिजनेस मॉडल, परफॉर्मेंस प्लान सब जगह पर, प्रोवाइड्स अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क विद इन व्हिच मार्केट एंड रेगुलेटरी ड्रिवन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी इंटीग्रेटेड। ये आगे क्या होगी क्या नहीं होगा इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इसका ना छोटा सा देख लेंगे, अगर नेट पे कोई इजी सा मिला ना तो वही 2-3 पॉइंट्स लिख लेंगे। ये थोड़ा सच्ची नहीं हो, जैसे ये प्रोवाइड्स अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क विद इन व्हिच मार्केट रेगुलेटर ड्रिवन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अपने लैंग्वेज में लिखना, ये इजी करके लिख लेंगे। कल कौन सा कर रहे हैं? 8 कर लो, बहुत छोटा है, बोर्ड डिस्क्लोजर एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर, बहुत छोटा सा है, मैंने भी देखा। और ये अमेंडमेंट इसके रहते हैं ना यार, अमेंडमेंट सारे रहते हैं, बाकी मेन तो क्या आधे घंटे का काम हो रहा है। 8 सिर्फ इतना सा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। चल मैं ना वो चेक करती हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ ना कि इसके पहले वाला कुछ हाँ, अगर सेकंड में हुआ तो सेकंड कर लेना। उनको सिर्फ ये चेक करना कि कंटिन्यूटी में तो नहीं वही लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क बंद कर लो सब तो बंद